Good afternoon, students. Here we are on lecture 5 for chemical bonding. In the last lecture, I think आपने अच्छे से देखा होगा because that was very important. In that lecture, we had discussed valence shell electron pair repulsion theory. कैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सन ज्योमेट्री एंड शेप कैसे होते हैं, दैट वी हैड डिस्कस्ड इन दैट पार्ट विच इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल. अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात ना करें या बॉन्डिंग की एग्जैक्टली बात ना करें, सो वी हैड डिस्कस्ड हाउ द स्ट्रक्चर इज, बट वी नीड टू नो हाउ द बॉन्डिंग अकर्स, राइट? So here we are in this part we will discuss about valence bond theory. You know very well about before valence bond theory we had discussed the formation of covalent or ionic compound by octet rule theory. We had discussed that according to octet rule theory, or bonding occurs to complete their octet, complete 8 electrons in their outer shell. Every atom tried to get either its share electron or exchange electron. By exchange it form and cations, and by exchange form anion and cations, and the bond formed that is we know the ionic bond. But atoms also share, according to their nature, also shared electron, so they form covalent compound also. But we had discussed many type of compound. Those are, some are electron efficient, electron rich compound. Some are electron rich compound. Electron rich compound are those compound in which number of electron around central atom more than 8. For example, you can see PCl3, Cl, Cl. There are many compound. I'm sharing some with you. You can see. और अगर हम फॉस्फोरस के चारों तरफ देखें तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं. So 10 electrons is there. In case of SF6, there is 12 electrons around sulfur. In case of IF7, there is 14 electrons around iodine. So formation of electron rich compound is violation of octet rule theory. The second is electron deficient compound. Many compounds is there in which electron deficient compound. Octet incomplete, but there is compounds. Many compounds are there. For example, BF3. You can see in BF3 you can see very well 2, 4 and 6. Only 6 electron is there. AlCl3 and many more compounds is there. VCl3, VF3, VVr3, many compounds is there. Those are considered electron deficient compound. Those having vacant p orbital, that we will discuss in later part of this chapter कि vacant p orbital है या नहीं.
बट वी नो वेरी वेल कि बोरॉन, अगर हम बोरॉन VF3 का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो आप बना के देख लीजिए, बोरॉन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बनेंगे। इससे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, AlCl3, many compounds is there. Similarly, some odd electronic compound also there, odd electronic compound like NO2। बनाइए आप NO2 का स्ट्रक्चर, आपको NO2 के स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड ये बनेंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ NO, ऐसा ही वहां पर भी होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, राइट। सो odd electronic compound, that electron rich compound, they are also known as hypervalent compound, hypovalent compound, electron deficient compound, hypovalent compound। odd electronic compounds का फॉर्मेशन जो है वो वायोलेशन जो बताता है कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, राइट। एंड ऑक्टेट रूल थ्योरी do not explain the shape, size, bond angles, many more, but many of these issues I think settled after VSEPR theory also, कि VSEPR theory लगा दीजिए, ऑक्टेट रूल थ्योरी से बनाया तो कोई बात नहीं, VSEPR लगा दीजिए, काम हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके शेप और साइज में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑड इलेक्ट्रॉन, ये इशू जो आ रहा है ये सबसे बड़ा इशू होता है। VSEPR ने तो ऑक्टेट रूल थ्योरी को भी काफी सेटल कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि VSEPR आप लगा पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख लीजिए और फिर VSEPR से स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देख लीजिए। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, इनका क्या करेंगे? सो जनरली अगर हम देखें ओवरऑल दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल थ्योरी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, which is very important. It is just historical importance right now. Hitler and London given this, introduced this theory, and Pauling and others developed this theory. Some important points of this theory are given as postulates. One is that we know very well, when two atoms are at large distance from each other, that distance is considered as infinity, right? So there is no interaction between them. एक कंपाउंड आपने एक फ्लोर पे रखा हुआ अपने घर में और दूसरा नीचे फ्लोर पे रखा हो, तो क्या उनमें कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन रिएक्शन की बात कब होती है? जब आप दोनों कंपाउंड को पास में लेके आते हैं, यानी एटम्स को पास में लेके आते हैं, राइट। और जब आप एटम्स को पास में लेके आते हैं तब क्या होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो जब आप एटम्स को पास में लेके आते हैं तो in that condition, when two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. अगर आप दो एटम्स की बात करें तो दोनों एटम्स में it is very much clear, if we are talking about two atoms, in that case this is one atom and this is the nucleus, right? So electrons are also there, many electrons are there, and this is another atom and nucleus of it, and many electrons in it also there, yes or no? So when they come close to each other, when they approach to each other, in that case there is some attraction forces. attraction forces क्या है भाई? attraction forces में Na, जैसे this atom let A, this atom let B, तो attraction forces Na, Ea, Nb, Eb. These attraction forces they are intra-atomic attraction forces, एक ही एटम में, और between atoms Na, Eb and Nb, Ea. So these new attraction forces developed between two atoms. Similarly, the repulsion forces also developed, Na, Nb, Ea, Ev, repulsion forces also developed between them. But initially attraction forces, क्योंकि जैसे से पास आते हैं तो attraction forces, it is observed experimentally that attraction forces are more effective
इन द बिगिनिंग अट्रैक्शन फोर्सेस स्टार्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और फिर टाइम के साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इसके कारण से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं. Right? So as the two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. And the third, it has been found that the magnitude of new attractive forces is more than new repulsive forces. So as a result, two atoms approach each other and potential energy decrease. What the role of potential energy is here? Remember, the energy. Potential energy at infinity is zero, considered zero at infinity, which is maximum potential energy actually. जैसे जैसे एटम्स पास में आते हैं, आप धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे. जैसे जैसे एटम्स पास में, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होना मतलब सिस्टम का, अगर मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँ कोई बात, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको इतनी चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम रिलेटिवली अनस्टेबल है. बिकॉज अभी तक आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं. तो अभी के बारे में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी अ क्राइटेरिया टू डिफाइन अनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के पास में आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे और उस कंडीशंस में स्टेबिलिटी की तरफ वो, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, सिस्टम कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ग्राफ यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी लगातार इंक्रीज होती है, लगातार डिक्रीज होती है. You can see in this graph. And then at a point जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, this point is considered as bond length. You can also see कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहां पर थी और जब ये इतने पास में आ गए तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में इतनी आ गई. इतना मतलब -435.8 जो एनर्जी है किलो जूल पर मोल, वो एनर्जी रिलीज हो रही है. दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी. जनरली जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं. रिमेंबर इट इज. सो ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और उसे बॉन्ड एंथैल्पी का टर्म दिया जाता है. तो एटम जब पास पास आते हैं, जो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसे बॉन्ड, उस एनर्जी को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और ऑब्वियसली जीरो से कम आ रहा है तो नेगेटिव होगा. तो मतलब -435.8 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग माइनस में है तो हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक होगी. बाहर तो मतलब उतनी एनर्जी बाहर निकल रही है. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज जीरो डिस्टेंस. ग्राफ यहां से आ रहा है. रिमेंबर, जो हम पास पास आ रहे हैं, देखिए दूर दूर है, फिर पास पास आ गए और पास पास आ गए. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, which is also termed as bond length. This diagram is given for hydrogen, which is bond length around 74 picometer. But all other atoms come in the same manner. You can also see here some part of both the atoms is overlapped by other atoms. Some part of atoms is overlapped by other atoms. Some part of one atom is overlapped by other atoms. Actually, this process is called overlapping. We'll discuss about overlapping in later part. So this is what we called overlapping. So ultimately the stage is reached where the at the minimum potential energy point, the force of attraction is equal to the force of repulsion, and then at this point is considered as the energy is minus potential energy is considered as bond enthalpy, and the distance between the nucleus of atoms, internuclear distance, is considered as bond length. So these are 5 points. The one is atoms, one is where no force of attraction, a normal condition, no interaction between the atom, they placed far apart. When one atom approaches to the other,
attracting forces, attracted and repulsive forces begin to operate. In the third condition, the attractive forces is more than the repulsive forces, so obviously they approach each other and potential energy decrease, and at a distance of minimum potential, at a point of minimum potential energy, the energy released is termed as bond enthalpy, and the distance is called internuclear distance. And during this process, at internuclear distance, at a bond length, some part of one atom is overlapped by other. This process is also termed as overlapping, and we are going to discuss that overlapping process, overlapping point, orbital overlapping concept. So according to this concept, when the formation of covalent bond between two atoms result, the overlapping occurs. I'm not going through it actually. The overlapping occurs. What happened in overlapping? Remember, in overlapping, according to VVT, in overlapping, the outer shell outer shell orbitals overlapped. Outer shell orbitals, only outer shell orbitals overlapped. Outer shell orbitals, we know that is valence shell, na? That's why outer shell orbitals overlap. So obviously outer shell electrons overlapped, and outer shell half filled orbitals overlap generally. It is termed by Hitler and London, but बाद में क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, बट इनिशियली ये गिवन था कि आउटर शेल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओनली कैन ओवरलैप. So that's why it is given. The formation of a covalent bond between two atoms result by pairing of electrons present in valence shell having opposite spin. The valence shell electrons having opposite spin paired during overlapping. Remember, it is overlap is different, various type of the point is about overlapping is very simple, and that is that overlapping occurs of valence shell electrons or orbitals. Only valence shell orbitals overlapped. The part of valence shell orbitals, valence shell, only valence shell is overlapped during formation of covalent bond. Remember, it is the point. मैं इसलिए बार बार आपको पॉइंट कर रहा हूँ कि जब भी दो एटम्स पास में आते हैं तो उनके वैलेंस शेल जो हैं वो ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. वैलेंस शेल ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे, ऑब्वियसली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. रिमेंबर, इट इज राइट. कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है. देखिए, मैं इस स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव. समटाइम्स यू कैन सी ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स और डी सबशेल्स plus and minus is represented. So remember, this plus and minus is showing nothing, just showing the different lobe of the subshell. That's it. इसके अलावा ये नहीं बता रहे हैं कि प्लस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस है तो नहीं होगा, या माइनस है तो नहीं. नो, दे आर जस्ट शोइंग द डिफरेंट ऑर्बिटल्स. So you can see in positive or in phase overlap. In case of positive overlap, same lobes of both the atoms combined. दोनों एटम्स के सेम लोब कंबाइन होते हैं, डिफरेंट लोब कंबाइन नहीं होंगे. प्लस कंबाइन होगा प्लस से, माइनस कंबाइन होगा माइनस से. ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस माइनस है. दैट इन पॉजिटिव ओवरलैप. इन नेगेटिव ओवरलैप प्लस माइनस कंबाइन होता है, विच जिसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे. दिस इज कॉल्ड इन द फर्स्ट केस इट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन सेकंड केस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है. विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो. सो यू कैन सी इन प्लस कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, राइट. One more important thing is this: if such type of overlapping, this is same type of overlapping is okay, but this type of overlapping showing zero overlap, this showing positive overlap, this showing negative overlap, but this type of overlapping, this type of actually overlapping showing zero overlap. इसमें कोई भी टाइप का overlapping देखने को नहीं मिलता. इस तरह की अगर कोई overlapping क्रॉस होती है, you can see in this px और py, नहीं, सेम टाइप के लोब्स होने चाहिए तभी ओवरलैपिंग की
बात होती है। अगर लोब अलग अलग होंगे तो ओवरलैपिंग की बात नहीं होगी या पॉजिटिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, राइट। ये देखिए पी एक्स एंड पी वाई हो रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। यहाँ देखिए पी वाई ये देखिए पी वाई एंड पी वाई बट माइनस प्लस है, पी वाई एंड पी वाई सेम है तो ओवरलैपिंग हो रही है। पी वाई एंड पी वाई अगर माइनस प्लस है तो नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस है तो पॉजिटिव हो गया, कोई इशू नहीं है ना। सेम टाइप के जो लोब्स हैं वही ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे सब ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर सकते हैं जिनका अरेंजमेंट एक जैसा हो, राइट। So this is orbital overlap concept, right? Types of overlapping and nature of covalent bond. Here we are. So one is called axial overlapping and other one is called sidewise overlapping. In case of axial overlapping, atoms on an axis is overlapped. In the first case you can see s orbital and s orbital overlapped. ऑन दी एक्सिस, एक एक्सिस उनके सेंटर से पास करते हुए आप दिखा सकते हैं, सो एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगा। एक एस एंड पी ऑर्बिटल इज ओवरलैप, सो ऑन दी एक्सिस एक एक्सिस यहाँ से पास होते दिखा सकते हैं तो एस पी ओवरलैपिंग हो जाएगा। पी पी ओवरलैपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द पी पी ओवरलैपिंग, हमें वी नो द पी ऑर्बिटल्स, 3 पी ऑर्बिटल्स इज देयर एंड वन, अगर एक को हम किसी को भी कंसीडर कर लें कि एक एक्स एक्सिस पे होगा, अगर हम यहाँ पर एक एक्सेस मांग लें तो बाकी दोनों जो होंगे वो फिर एक्सियल ओवरलैपिंग शो नहीं कर पाएंगे, यानी पी एक्स पी वाई पी जेड इनमें से कोई एक जो होगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेगा, बाकी दोनों जो होंगे वो दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग शो करेंगे, एक्सियल नहीं करेंगे, एक्सिस पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि चलिए ये पी एक्स है तो पी एक्स और पी एक्स कंबाइन हो गए एक्सियल ओवरलैपिंग। इन ऑल 3 केसेस देयर इज एक्सियल ओवरलैपिंग। आई एम शोइंग दिस ओवरलैपिंग अगेन here because this is very important concept. So here it is, this is 1s and this is the axis and the same axis is there and this is the nucleus must be on the axis and that's it. So दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ओवरलैपिंग हो जाएगी। सो एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है एंड दैट्स वाई एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। अगर हम इसको ले रहे हैं एंड पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, सो दिस इज एक्सिस एंड दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड दिस वुड बी एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। अगर हम पी ऑर्बिटल्स को ले रहे हैं, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पी ऑर्बिटल्स इज देयर, दिस इज इट्स एक्सिस, दिस इज इट्स एक्सिस एंड दोनों कंबाइन हो गए तो दैट वुड बी एक्सियल। बट वी नीड टू कंसीडर, जनरली अलग अलग बुक में अलग अलग होता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है ना, जैसे कि हमने पी एक्स ले लिया, कहीं पी जेड है, वट एवर इट इज, इट डजेंट मैटर। पॉइंट ये है कि आप एक जो ले रहे हैं, जैसे पी एक्स और पी एक्स हमने यहाँ ले लिया, राइट, यहाँ पर भी हमने इसे पी एक्स कंसिडर किया है तो ये एक्सियल हमने ले लिया, तो बाकी दोनों जो होंगे वो एक्सियल में नहीं होंगे, वो उसके परपेंडिकुलर होंगे, यस और नो। सो इस तरीके से हम तीनों को बता सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज टर्म्ड एज एक्सियल ओवरलैपिंग। द अनदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज टर्म्ड एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। जहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं वहां साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इन दिस केस यू कैन सी दीज टू लोब कम फेस बाय फेस, एक दूसरे के सामने आएंगे एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज टेक प्लेस, राइट। इस तरीके से ऐसे ही एक और ओवरलैप विच इज नॉट गिवन इन योर बुक, डीपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, उसमें एक डी सबसेल। आई एम शोइंग दिस बोथ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हियर, right? So here you can see this type of overlapping also. So this is P, one P is there, that might be Py or Pz, right? This, and both come closer and like this and like this, right? Similarly in D subshell we know it is this, this, and it is not required to mention that कि दोनों अगर ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो प्लस प्लस होना चाहिए और माइनस माइनस होना चाहिए, ऐसा, राइट। सो यहाँ पर आप प्लस ले सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस ले सकते हैं और यहाँ एक पी ऑर्बिटल, तो इस तरह से प्लस यहाँ पर माइनस होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। सो ये माइनस होना चाहिए। इस कंडीशन में दिस विल बी, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी उसे अपन क्या कंसीडर करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे,
पी पाई पी पी डी पी ओवरलैपिंग, अपन क्या बोलेंगे उसे, डी पी ओवरलैपिंग, है ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डी पी ओवरलैपिंग। मैं इसको कहीं बेहतर ऊपर थोड़ा सा लेके और मैं अच्छे से बना देता हूँ, है ना। सो ये हो जाएगा क्या, दैट वुड बी 1 2 3 4, राइट। तो इसके साथ पी आ गया, तो इट वुड बी लाइक दिस, राइट। तो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, राइट। आप किसी भी तरीके से इसे सोच सकते हैं, है ना, कई तरीके हो सकते हैं इसके बारे में सोचने की। ओके, बट इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है, प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ हियर वी आर on the important discussion. One is axial overlapping and another one sidewise overlapping, right? So what happened in axial overlapping? In case of axial overlapping, that electron density remain on the axis. देखिए these lobes, ये लोब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या ये स्फीयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी है ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए तो दीज आर बाउंड्री सरफेस डायग्राम और दे आर शोइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, या इस केस को हम समझ सकें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, एक्सिस पर है, जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है। अगर मैं इन केसेस में एक्सिस डिनोट करूं तो एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस होगा, जहां उनका नोड होता है वो एक्सिस होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर तो बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। That's why this diagram is represented here. You can see this diagram is representing electron density above and below the main axis or plane, I can say. So in axial overlapping, electron density remain on the axis, but in sidewise overlapping, electron density remain above and below the plane. One more important thing is this is electron density and this is electron density, this is electron density and this is electron density. So more lobe come in contact, more will be the repulsion, yes or no? ज्यादा से ज्यादा लोब अगर कांटेक्ट में आएंगे, लोब राइट, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि लोब्स आर शोइंग, स्फीयर्स आर शोइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस और नो। सो जितने ज्यादा लोब्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, राइट। इसीलिए एक्सियल ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनते हैं उनमें रिपल्सन कम होता है और वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में रिपल्सन ज्यादा होता है और वो वीक बॉन्ड कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप कैन यू इमेजिन कि अगर डी सबसेल के 4 लोब्स वाले बॉन्ड अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग, 2 डी सबसेल सामने सामने अगर ओवरलैपिंग करें तो 4 लोब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और इसीलिए उससे जो बॉन्ड बनता है, जैसे डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है, वो वीकेस्ट होता है। सो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू pi bond, and that's why I did not write here anything. The first point that we have to write here is sigma bond formed by axial overlapping. Pi bond formed by side-wise overlapping. Okay, now the next point is sigma bond stronger bond than pi bond, stronger bond than pi bond. How can we find it? बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड एंथैल्पी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स मोर देन 100 किलो जूल पर मोल, ऑब्वियसली 100 किलो जूल पर मोल,
right? Or if we are talking about pi bond, so what we can say about pi bond? What we can say about pi bond? Weaker bond than, yeah, weaker bond than sigma bond, right? तो रीजन क्या हो जाएगा इनके लिए? रीजन क्या हो जाएगा भाई? रीजन हो जाएगा मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, लेस रिपल्सन। इन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एक्सियल लोब, लेस लोब कम इन कांटेक्ट, लेस रिपल्सन in electron density, less repulsion in electron density, right? But यहाँ पर क्या हो जाएगा? more repulsion in electron density, right? more repulsion in electron density, more repulsion in electron density, right? Now here the fourth point is, fourth point क्या हो जाएगा? electron density, electron density, electron density lie, remain on the axis, on the axis। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन above and below the plane, right? राइट। तो ये जो है कुछ मेन डिफरेंस बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, और उसी के बेस पर फिर उनकी जो है वो स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन देम। थैंक यू फॉर टुडे।